Hello everyone. Today let's look at the second part of the chapter. We are not afraid to die if we can all be together. In the last part we have read that on 2nd January, narrator and his family had to face such a storm that it smashed their ship and their ship got filled with water. They were trying very hard to pump the water out of their ship. Now let's move on to the second part. By morning on January 3rd, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. Narrator says that by next morning, that was January 3rd, the water level had sufficiently receded and all the crew members they were able to take at least a rest of 2 hours in rotation. हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि 2 जनवरी को उनका शिप जो था वो पानी से बहुत बुरी तरीके से भर गया था और उस पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे. अब नरेटर बताते हैं कि जनवरी 3rd तक उन्होंने काफ़ी सारा पानी जो है अपने शिप से बाहर निकाल लिया था और अब जो सिचुएशन थी वो इतने कंट्रोल में थी कि वो एटलीस्ट 2 घंटे का जो रेस्ट था वो रोटेशन में ले सकते थे. दैट मीन्स वो 2 आवर्स काम करते, फिर 2 आवर्स के लिए वो रेस्ट करते, फिर दोबारा से वो काम करना स्टार्ट करते. But we still had a tremendous leak somewhere below the water line, and on checking, I found that nearly all the boat's main reef frames were smashed down to the keel. He says that somewhere below still water was coming inside. नरेटर बताता है कि अभी भी जो पानी था वो कहीं ना कहीं से अंदर आ रहा था. So he wanted to know how the water was coming inside. And on checking he found that main reef frames were broken and they were down to the keel. Keel means base of the ship. और जब नरेटर ने चेक किया कि ये पानी कहाँ से अंदर आ रहा है तो उसने देखा कि बोट के जितने भी मेन रीफ फ्रेम्स थे वो सब डैमेज हो चुके थे, सब स्मैश्ड हो चुके थे और बिल्कुल शिप के बेस तक खराब हो चुके थे. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. He said that only a few cupboard partitions were holding the whole starboard side of the body intact and that too could not last long. So जब नरेटर ने चेक किया तो उसको ये नज़र आया कि जो पूरा starboard साइड था शिप का, दैट मीन्स द राइट साइड ऑफ दैट शिप, उसको होल्ड करने के लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं था सिर्फ कुछ कबर्ड पार्टीशंस के अलावा. उसको लगा कि कबर्ड पार्टीशंस भी बहुत देर तक इसको होल्ड नहीं कर पाएंगे और जो उनका शिप है वो बुरी तरीके से टूट जाएगा. We had survived for 15 hours since the wave hit. So it was almost 15 hours now after the wave had hit Wave Walker and caused the damage. जब वो बड़ी सी लहर जो है वेव वॉकर से टकराई थी जिसकी वजह से वेव वॉकर डैमेज हो चुका था, उस बात को अब 15 आवर्स बीत चुके थे. But Wave Walker would not hold together long enough for us to reach Australia. So he was sure that Wave Walker could not be holding together till they reached Australia and the ship would certainly break down before they would reach there. बट नरेटर इस बात पर श्योर था कि वेव वॉकर की जो कंडीशन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो बहुत डैमेज हो चुका है और वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचने से पहले ही पूरी तरीके से डैमेज हो सकता है. सो दैट मीन्स कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक भी वेव वॉकर जो है अपने आप को होल्ड नहीं कर पाएगा. I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. So now it's his duty to find out where they could take the ship safely. So according to calculation and charts, he found out that there are 2 small islands which are located at a few hundred kilometers from their current position. सो ऑब्वियसली उनको अब वेव वॉकर को एक सेफ प्लेस पर ले जाना था, ऑस्ट्रेलिया तक तो वो जा नहीं सकते थे. सो नरेटर ने अपने चार्ट्स चेक किए और कैलकुलेट किया और कैलकुलेशन के बाद उसको ये पता लगा कि जहाँ पर वो अभी थे, दैट मीन्स उनकी करंट पोजीशन से लगभग कुछ 100 किलोमीटर्स आगे 2 आइलैंड थे. तो उसने डिसाइड किया कि ऑब्वियसली वो इस वेव वॉकर को उस आइलैंड तक लेकर के जाएगा. वन ऑफ दैम, आइल एम्स्टर्डम, was a French scientific base. So one of that small island is a French scientific base and its name is Isle Amsterdam. So वो जो 2 आइलैंड उसने फाउंड आउट किए थे उनमें से जो एक था वो एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था और उसका नाम था आइल एम्स्टर्डम. Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean.
So the narrator says that now they have only one hope. अब उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीद थी, and that was to reach these pinpricks. Pinpricks means these small island in the vast ocean. और वो होप ये थी कि वो इतने बड़े समुद्र में इन छोटे से आइलैंड में पहुंच जाएं. पिनप्रिक का मीनिंग है बहुत छोटा, डॉट के बराबर. सो ऑब्वियसली जो ओशन है वो बहुत बड़ा है और उसमें ये आइलैंड बहुत ही छोटे हैं, सुई की नोक के बराबर ये आइलैंड उसमें दिखाई देते हैं. बट अभी उनके पास सिर्फ यही उम्मीद बची है अपने आप को बचाने की. But unless the wind and seas abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. He says that only if the wind and the waves subsided, then only they could hoist the sail, and then they move forward in a calm way and reach one of the islands. सो नरेटर कहते हैं कि जब तक कि हवा की जो स्पीड है वो कम नहीं हो जाती और जो ये लहरें हैं ये कम नहीं हो जाती, तब तक हम आगे सेल नहीं कर सकते. और जब विंड कम होने लगेगी, विंड की स्पीड कम हो जाएगी, लहरों में उफान आ रहा है वो कम हो जाएगा, तभी वो अपनी सेल को आगे बढ़ा पाएंगे और तभी वो वहाँ पहुँच पाएंगे. द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन. He says that they had a secondary engine to support their travel, but that huge wave actually damaged it and now they were not able to use it. So narrator बताते हैं कि उनके पास एक ऑक्सिलरी इंजन था, एक सेकेंडरी इंजन था जो उन्होंने अपने सपोर्ट के लिए रखा हुआ था, लेकिन वो जो वेव आई थी पहले वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि उसकी वजह से ये सेकेंडरी इंजन भी ख़राब हो गया और अब ये उससे कोई भी काम नहीं कर सकते थे. On January 4th, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. He says that after 36 hours, that means after 1.5 days of continuous pumping out of the water, only few centimeters of water was left inside the ship. So 4 जनवरी को लगभग 36 घंटों से कंटिन्यूस पंपिंग करने के बाद, 36 घंटे मीन्स पूरा एक दिन और फिर आधा दिन, सो लगभग 1.5 दिन तक वो कंटिन्यूस पंपिंग करते रहे और उसके बाद अब जनवरी 4 को उनके शिप में कुछ ही सेंटीमीटर्स पानी रह गया था. नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन. Now they had to control the amount of water that was coming inside and they would really safeguard the ship. अब उन्हें बस उस पानी के साथ पेस बना कर रखना था जो कि अंदर आ रहा था. दैट मीन जितना पानी अंदर आ रहा था उन्हें अब उतना ही पानी बाहर निकालना था. बाकी जो पहले पानी भर चुका था उसे वो बाहर ऑलरेडी निकाल चुके थे. We could not set any sail on the main mast. He says that he was not able to hoist any sail on the main mast. नरेटर कहता है कि हमारा जो मेन मास्ट था उसकी हालत अच्छी नहीं थी, वो डैमेज हो चुका था, तो उस पर हम कोई भी सेल नहीं कर सकते थे. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. So we hoisted the storm jeep and headed for where I thought the 2 islands were. So he says that he could not put any pressure on the rigging. नरेटर कहता है कि वो रिगिंग पे किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डाल सकते थे. रिगिंग इज़ द सिस्टम ऑफ रोप दैट आर टाइड टू कीप द मास्ट इन प्लेस. रिगिंग रोप्स का वो सिस्टम है जिससे हम मास्ट को उसके प्लेस पर रखते हैं, पर उनका मेन मास्ट ऑलरेडी डैमेज हो चुका था और वो रिगिंग पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते थे. एंड इफ़ दे वुड पुट एनी प्रेशर ऑन इट, इट वॉज डैमेज द होल बॉडी ऑफ द शिप इटसेल्फ. अगर वो ऐसा करते हैं, अगर वो रिगिंग पे प्रेशर डालते हैं तो उससे उनका पूरा शिप डैमेज हो सकता है. सो नरेटर ने कहा कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते थे. नाउ दे हॉइस्टेड द स्टॉर्म जिप एंड दे हॉइस्टेड टुवर्ड दीज आइलैंड्स. सो उन्होंने अपनी स्टॉर्म जिप को दोबारा से ड्रॉप कर दिया ताकि वो थोड़ा बहुत सेलिंग कर पाएँ और वो उन आइलैंड की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे. Mary found some corned beef and cracker biscuits and we ate our first meal in almost 2 days. So it was almost 2 days that they had eaten nothing because they were only trying hard to come out of the dangerous situation. Now his wife Mary found some corned beef. Corned beef means cooked beef that has been preserved in salty water and spices. Beef, I think you know, the meat from a cow is called beef. So his wife Mary found some corned beef and cracker biscuits which they all ate together. सो लगभग उन्होंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था बिकॉज़ वो उस पानी को बाहर निकालने में इतना बिजी थे कि उन्हें खाने का टाइम ही नहीं मिला. और अब लगभग 2 दिनों के बाद उन्होंने अपना
पहला मील लिया है जो कि उनकी वाइफ लेकर के आई थी। वो कॉर्न बीफ था और कुछ क्रैकर बिस्किट्स थे और उन लोगों ने वो साथ में मिल कर के खा लिया। बट आई रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। सो ही सेज दैट द रिलीफ दैट दे हैड दे रिमेंड ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। जो उनको रेस्ट मिला था वो बहुत ही कम समय के लिए मिला, बिकॉज at 4 p.m. black clouds began building up behind us. So what happened? He says that again black clouds began forming at about 4 p.m. because लगभग 4 बजे के आसपास दोबारा से काले घने बादल आसमान में उनको नजर आने लगे थे। Within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. So the wind started increasing and the sea was also becoming rougher. So there were huge clouds in the sky and the huge waves in the ocean. और फिर दोबारा से क्या हुआ कि जो विंड की स्पीड है वो 40 नोट्स तक आ गई, वो बढ़ती रही और जो समुद्र में लहरें थी वो भी और ज़्यादा ऊंची होती जा रही थी। The weather continued to deteriorate throughout the night and by dawn on January 5th our situation was again desperate. So he says that the weather was becoming worse and worse and until January 5th morning their situation was worsened to the core. So narrator कहते हैं कि मौसम लगातार रात भर ख़राब होता रहा और जनवरी 5th की मॉर्निंग तक उनकी जो हालत थी, सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा डिस्परेट करने वाली सिचुएशन थी। When I went in to comfort the children, John asked, Daddy, are we going to die? So when he went to look at his children to see how their condition was, his son asked the question whether they all were going to die. So narrator अपने बच्चों को देखने के लिए आया कि उनकी कंडीशन कैसी है। तो जब वो अपने बच्चों के पास आया तो उसके बेटे जॉन ने क्वेश्चन किया कि डैडी क्या हम सब मरने वाले हैं? I tried to assure him that we could make it. But daddy, he went on, we aren't afraid of dying if we can all be together. You and mommy, Sue and I. So when John asked this question, narrator tried to assure him by saying that they will find the island and they will be able to reach there safely. So narrator ने अपने बेटे को अश्योर करने की कोशिश की। उसने कहा कि हम वहाँ जल्दी ही आइलैंड पर पहुँच जाएंगे। But the child showed up great courage and optimism by saying that he is not afraid to die if he is with the family and he is with his mother and father and sister Suzanne. So जो जॉन था उसने अपने फादर को रिप्लाई किया कि डैडी हमें मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता अगर हम सब साथ में हों। दैट मीन्स अगर मेरे साथ आप हों, मेरी मदर हो और मेरी सिस्टर सुजैन मेरे साथ में हो तो मैं मरने से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। I could find no words with which to respond. So when he heard these words, he got speechless because he was feeling so touched because of the support being extended by his son. So नरेटर कहता है कि जॉन के ये वर्ड्स इतने ज़्यादा टचिंग थे कि उसके पास उनको जॉन को रिप्लाई करने के लिए वर्ड्स ही नहीं बचे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे अपने बेटे से क्या कहना है। But I left the children's cabin determined to find the sea with everything I had. But now when he left the children's cabin, he was fully determined that he will fight the sea with all his part and everything that he had. लेकिन जब वो अपने बच्चों के कैबिन से बाहर निकला और जब उसने जॉन की बातें सुनी तो अब वो पूरी तरीके से डिटरमिन्ड हो गया कि मुझे किसी भी हालत में इस सी से लड़ना है। मेरे पास जितने भी पावर है, मैं जो भी कर सकता हूँ वो मैं अपने आप को बचाने के लिए करूँगा। To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves. So he wanted to protect the ship at any cost, and because one side of it was already broken, so he decided to park the ship for a while in the ocean itself. Heave to means होता है ocean में कुछ समय के लिए ship को थोड़ी देर के लिए पार्क कर देना. It was a defense strategy so that he could save his ship. Using an improvised tree anchor of heavy nylon rope and two 22-liter plastic barrels of paraffin. So using the undamaged part of the ship and making an improvised tree anchor using a heavy nylon rope and a barrel of 22-liter paraffin, he decided to stop the boat for a while.
सो नरेटर ने डिसाइड किया कि अपने स्टारबोर्ड साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए वो थोड़ी देर के लिए यहीं पर होल्ड करेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। और इस वक्त जो उसकी बोट का अनडैमेज पार्ट है, जो हिस्सा जो डैमेज नहीं हुआ है, वो वेव्स की तरफ होगा ताकि स्टारबोर्ड साइड को बचाया जा सके। और यहाँ पर होल्ड करने के लिए उसके पास लगभग 22 लीटर्स के 2 प्लास्टिक बैरल हैं पैराफिन के। पैराफिन इज़ काइंड ऑफ अ फ्यूल और ऑयल। और साथ में ही उसके पास नायलॉन की हैवी रोप है जिससे वो एंकर बनाएगा। सो इन सब चीज़ों की हेल्प से वो कुछ देर के लिए यहीं पर होल्ड करेगा, ऐसा उसने डिसाइड किया। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt the end was very near. So both of them, Mary and narrator, were holding their hands and sitting together because they felt that they were going to die and their end was near because more and more water was shipping in. So continuous पानी जो है उसमें शिप में आता जा रहा था। तो नरेटर को और उसकी वाइफ को ये लगा कि उनका एंड जो है बहुत पास में है, अब वो बच नहीं पाएंगे, वो मरने वाले हैं। सो इस इवनिंग को मैरी और वो, दैट मीन्स उसकी वाइफ और नरेटर, साथ में बैठे हुए थे और उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6 with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. He says that the wave walker had crossed over the storm and by next day morning the wind was little bit easy. That means the speed of wind had reduced and he tried to use his sextant to get a reading. Sextant is an instrument on the ships used for measuring distances. So उस रात को 5 जनवरी को जो वेव वॉकर था वो तूफ़ान का सामना कर पाया और 6 जनवरी की मॉर्निंग तक जो विंड थी वो धीरे धीरे उसकी स्पीड जो है कम होती जा रही थी। और तब नरेटर ने अपने सेक्सटेंट पे एक रीडिंग लेने की कोशिश की। सेक्सटेंट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि शिप्स में डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, changes of course, drift and current in an effort to calculate our position. The narrator went back to the chart room. Chart room is a room in a ship where he can consult a lots of charts regarding the position and direction etc. चार्ट रूम एक ऐसा रूम होता है जहाँ पर बहुत सारे चार्ट्स रखे होते हैं जिससे कि पोजीशंस का और डायरेक्शन का पता लगाया जा सके। सो ही वांटेड टू कैलकुलेट द स्पीड एंड द चेंज इन डायरेक्शन एंड ऑल। सो ही वांटेड टू सी और कैलकुलेट हिज पोजीशन और वेयर दे वर currently located. So in order to calculate that he went back to the chart room. सो नरेटर ये कैलकुलेट करना चाहता था कि उनकी पोजीशन क्या है, वो कहाँ पर हैं अभी, और जो विंड की स्पीड है वो कितनी है, जो वेव्स का करंट है वो कितना है। सो ये सब कैलकुलेट करने के लिए वो अपने चार्ट रूम पर गया, उसने अपने चार्ट्स को देखा। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. So after his calculation he could understand that he was located somewhere in a wide ocean of around 1,05,000 kilometers wide. So जब उसने अपने चार्ट्स वगैरह चेक किए तो उसको ये पता लगा कि वो कहाँ पर हैं। वो लगभग 1,50,000 किलोमीटर जो बड़ा ओशन है उसमें वो हैं। And there they were searching for a small island that was just 65 kilometer wide. और इतने बड़े ओशन में 1,50,000 किलोमीटर्स बड़े ओशन में वो सिर्फ एक छोटा सा आइलैंड ढूंढ रहे हैं जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, सिर्फ 65 किलोमीटर वाइड। सो यू कैन इमेजिन कि उतने बड़े समुद्र में वो आइलैंड कितना छोटा होगा। While I was thinking, Sue moving painfully joined me. The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slits. So when he was sitting and thinking about all these things, Sue came towards him and she was in great pain. जब नरेटर ये सब सोच रहा था कि हमारी पोजीशन ये है और हम इतने बड़े ओशन में 65 किलोमीटर्स का आइलैंड ढूंढ रहे हैं, तो उस वक्त उसकी जो डॉटर थी सू वो उसके पास आई और सू बहुत पेन में थी। एंड व्हेन द नरेटर नोटिस हिज डॉटर ही सॉ दैट द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वाज swollen and her eyes were also swollen and the openings were just like slits.
सो जब नरेटर ने देखा अपनी डॉटर सुजैन को, तो उसने देखा कि जो उसका सर है, लेफ़्ट साइड उसके सर का जो है उसमें बहुत स्वेलिंग आ चुकी है, उसकी आंखें जो हैं बहुत ज़्यादा काली हो चुकी हैं और उसकी आंखों को देखकर लग रहा था कि उसमें कट लग गया हो। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, सो सू हैंडेड ओवर अ कार्ड टू हर फादर एंड दिस कार्ड वॉज मेड बाय सू हरसेल्फ। सू ने अपने फादर को, नरेटर को, एक कार्ड दिया जो कि उसने खुद बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, here are some funny people. Did they make you laugh? I laughed a lot as well. So narrator says that when he saw on the front of it there were some caricatures of Mary and himself. So narrator ने जब उस कार्ड को देखा तो उसके फ्रंट पर सू ने कुछ कैरिकेचर्स बनाए थे। कैरिकेचर्स आर सिली और फनी लुकिंग ड्राइंग्स। सो सुजैन ने अपनी मदर और फादर के, मैरी के और नरेटर के कुछ फ़नी लुकिंग ड्राइंग्स जो थी उस कार्ड के फ्रंट पर बनाई थी और उस पर उसने लिखा था हेयर आर सम फनी पीपल, दैट मीन्स ये कुछ फ़नी लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या इनको देखकर आपको हंसी आती है? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, दैट मीन्स ये इनको देख के मुझे बहुत हंसी आती है या फिर ये मुझे हमेशा हंसाते हैं। इनसाइड वॉज अ मैसेज, ओह हाउ आई लव यू बोथ, सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। And inside of that card there was a message, and there she had expressed her love to both of his father and mother and also thanked them, and she said that she was hoping for the best. So उस कार्ड के अंदर सुजैन ने एक मैसेज लिखा था, उसमें उसने बोला था कि मम्मी पापा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और ये जो कार्ड है ये आपको थैंक यू बोलने के लिए है, क्योंकि जो भी प्यार आपने मुझे दिया है उसके लिए। एंड एट द एंड वो बोलती है लेट्स होप फॉर दी बेस्ट, दैट मीन्स हमें बेस्ट, सबसे अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। सम हाउ वी हैड टू मेक इट। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस। We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. So narrator अपनी कैलकुलेशन को चेक कर रहा था, फिर दोबारा से रीचेक कर रहा था। एंड इन दिस स्टॉर्म ही हैड लॉस्ट हिज मेन कंपस, और इस स्टॉर्म में उसका जो मेन कंपस था वो खो गया था। एंड नाउ ही वॉज यूजिंग स्पेयर वन बट दैट हैड अ माइन्यूर एरर इन इट एंड इट वॉज नॉट गुड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। सो नरेटर के पास अब एक दूसरा स्पेयर जो कंपस था उसका वो यूज़ कर रहा था, मेन कंपस खो चुका था, लेकिन ये जो स्पेयर कंपस था ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था, इसमें कुछ प्रॉब्लम थी। बट स्टिल ही यूज्ड इट टू फाइंड आउट देयर लोकेशन, लेकिन अभी इसी की मदद से उसने अपनी लोकेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश की। I made an allowance for this and another estimate for the influence of the westerly currents which flow through this part of this Indian Ocean. So he made some rough estimates and also included the influence that the westerly currents would have on the ship. Narrator ने कुछ rough estimates बनाए और उसने ये चेक करने की कोशिश की कि जो इंडियन ओशन के इस पार्ट में जो वेस्टर्ली करंट्स बहती हैं उनका क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है। About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. So around at 2 p.m. the narrator went on the deck and asked his crewman Larry to turn the ship to 185 degree. So लगभग 2 बजे के आसपास नरेटर डेक पर गया, उसने अपने क्रूमैन लैरी को बोला कि वो शिप को लगभग 185 डिग्री में टर्न कर दे। If we were lucky, I told him with a conviction I did not feel he could expect to see the island at about 5 p.m. He said that though he had some strong belief, but still he was not sure about himself. So he said to Larry that if they would be lucky, so they would be able to see the island around 5 p.m. सो नरेटर ने लैरी को शिप को टर्न करने के लिए बोल दिया था 185 डिग्री पर, लेकिन वो श्योर नहीं था कि जो वो कर रहा है उससे वो आइलैंड पर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन उसने लैरी को बोला कि अगर हम लकी हुए तो हम लगभग 5 बजे के आसपास जो है आइलैंड तक पहुंच जाएंगे। Then with a heavy heart I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off. He left the steering with Larry and then he went below. And he did not have any hope of finding the island, so he was saying with a heavy heart he went down, climbed on his bunk, on his bed, and then amazingly he began to sleep.
सो नरेटर कहता है बहुत हैवी हर्ट के साथ मैं नीचे गया। हैवी हर्ट के साथ क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था, मुझे पूरी तरह से भरोसा नहीं था कि हम बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, और मुझे बहुत उम्मीद नहीं थी। तो एक बहुत हैवी हर्ट के साथ मैं नीचे गया अपने बंक पर, और मुझे अमेजिंगली वहाँ पर नींद आ गई। ऑल्दो उस वक्त उनकी कंडीशन बहुत बुरी थी, उसे पता नहीं था कि वो बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, लेकिन वो इतना ज़्यादा थक गया था कि जैसे ही वो अपने बेड पर गया उसे नींद आ गई। When I woke it was 6 p.m. and growing dark, so he went to sleep at 2 p.m. and when he woke up he saw that it was 6 p.m. and the weather outside was completely growing dark. सो नरेटर को नींद आ गई थी और जब वो उठा उसने देखा कि 6 बज गया है और बाहर जो मौसम था वो बहुत ज़्यादा काला होता जा रहा था, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। I knew we must have missed the island and with the sail we had left we could not hope to beat back into the westerly winds. He thought that he had missed the island and so he says that it would be very difficult to go back to the westerly winds. So नरेटर को लगा कि उसने आइलैंड मिस कर दिया है और वो ये सोच रहा था कि अब वो वापस नहीं जा सकते, दैट मीन्स वापस वो आइलैंड की तरफ नहीं जा सकते और उन्होंने अब आइलैंड खो दिया है, वो उससे आगे निकल चुके हैं। At that moment a touzled head appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. Shu was right behind him. When he was thinking all these things, at that moment he said that a tousled hat means an uncombed hat or that was not combed properly. So he said that a tousled hat appeared by his bunk. So जब वो ये सब बातें सोच रहा था तो अचानक से उसके बंक में उसको एक टॉजल्ड हेड नज़र आया। टॉजल्ड हेड मीन्स ऐसा सर जिसके बाल बिखरे हुए हों, जिसमें कॉम्ब नहीं की गई हो। सो अचानक से उसको एक ऐसा सर नज़र आया एंड दैट हैड बिलोंग टू जोनाथन हिज सन। और वो सर किसका था? वो था उसके बेटे का, जॉन का। दैट मीन्स उसका जो बेटा जोनाथन था वो अचानक से उसके सामने आया एंड ही सेड कैन आई हैव अ हग। सो जोनाथन उसके बेटे ने उसको पूछा अपने फादर को कि क्या मैं अभी आपको हक कर सकता हूँ। एंड सू वॉज ऑल्सो राइट बिहाइंड हिम, दैट मीन्स सू वॉज ऑल्सो देयर। सो जैन भी वहाँ पर उसके साथ में थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ? आई आस्क्ड। He did not understand that why his son came to him and wanted a hug because he thought that he had lost the island and now he was very hopeless. So नरेटर जो था ये बहुत होपलेस था, उसको लगा था कि उन्होंने आइलैंड खो दिया है, तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त में उसका बेटा उससे ऐसा क्यों कह रहा है कि क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ। Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. तो जब उसने अपने बेटे से पूछा कि अभी आप मुझे क्यों हक करना चाहते हो, सो हिज सन अमेजिंगली रिप्लाइड हिम दैट बिकॉज ही वॉज द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन ऑफ द वर्ल्ड। सो जॉन ने उसको रिप्लाई किया क्योंकि आप इस दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हो और सबसे बेस्ट कैप्टन हो, इसलिए मैं आपको अभी हक करना चाहता हूँ। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। Narrator replied to his son that it's not today that he is the best captain or the best father because he has lost the island. So narrator ने कहा कि नहीं जॉन, मैं आज बिल्कुल भी बेस्ट कैप्टन नहीं हूँ, बिल्कुल भी मैं बेस्ट फादर नहीं हूँ, मैं बहुत डरा हुआ हूँ क्योंकि हमने अपना आइलैंड जो है वो खो दिया है, ये वो सोच रहा था। Why you must be, said Sue in a matter of fact voice, you found the island. So when narrator saying all these things to John that he is not the best daddy or the best captain, then he heard the voice of his daughter and she claimed that you must be the best daddy in the world and she exclaimed that they had found the island. So जब नरेटर ये सारी बातें अपने बेटे को बोल रहा था कि नहीं मैं आज बिल्कुल भी मैंने अच्छे कैप्टन की तरह काम नहीं किया, ना ही अच्छे डैडी की तरह, तो अचानक से उसकी बेटी की आवाज़ आई। सुजैन बोली, बहुत ज़ोर से बोली कि क्यों नहीं, आप सबसे अच्छे डैडी और सबसे अच्छे आप कैप्टन हो। और फिर उसने बताया कि आपने आइलैंड को ढूंढ लिया है। वट? आई शाउटेड। नरेटर वॉज सरप्राइज एट दिस एंड ही शाउटेड वट। नरेटर को विश्वास नहीं हुआ इस बात पर जो सुजैन ने बोली थी और वो चिल्लाया क्या? इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, द कोरेस्ट, एज बिग एज अ बैटलशिप। So they said together loudly that it is out there in front of them and they compared the island with a battleship and said it was as big as battleship. तो जोनाथन और सुजैन दोनों एक साथ बोले
कि हमने आइलैंड ढूंढ लिया है और ये ठीक हमारे सामने है और ये लगभग एक बैटलशिप के बराबर है। दैट मीन्स उतना बड़ा है जितना कि एक बैटलशिप होता है। बैटलशिप इज़ द लार्जेस्ट टाइप ऑफ शिप यूज इन वॉर। बैटलशिप वो शिप होते हैं बड़े से जो कि वॉर में यूज़ किए जाते हैं। सो जोनाथन एंड सुजैन कंपेयर्ड द आइलैंड विद अ बैटलशिप, और उन्होंने कहा कि ये जो आइलैंड है ये एक बैटलशिप के बराबर बड़ा है। I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam. So he went out excitedly and looked at the stark outline of Isle Amsterdam, the French scientific base. तो ये सुनते ही नरेटर जल्दी से डेक पर गया और उसने उस आइल एम्स्टर्डम को देखा, उसकी आउटलाइन उसको नज़र आ रही थी और ये देखकर उसे बहुत रिलीफ मिला। It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation. So it was very desolate looking, only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation. That means it was not full of greenery, only few plants were here and there. So जब नरेटर ने उसको देखा उस आइलैंड को, तो उसने बताया कि एक वॉल्केनिक रॉक का एक टुकड़ा है और इसमें कोई वेजिटेशन नहीं है, ना के बराबर यहाँ पर हरियाली है, बहुत ही प्लांट्स यहाँ पर है। The most beautiful island in the world. But at that moment it was the most beautiful island of the world because it was a kind of escape from the terrible weather that they had been facing until now. लेकिन इस वक्त में वो जो आइलैंड था वो दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड लग रहा था बिकॉज उस आइलैंड की वजह से ही वो अपने आप को बचा पाए थे। सो ऑल्दो वो जो आइलैंड था दिखने में बहुत सुंदर नहीं था, वो सिर्फ एक वॉल्केनिक रॉक का एक ब्लीक पीस था और उसमें कोई ग्रीनरी भी नहीं थी, लेकिन उस वक्त उनके लिए वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत आइलैंड था। वी एंकर्ड ऑफशोर फॉर द नाइट and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. So during the night they anchored their ship at offshore. So रात के समय में उन्होंने अपना जो शिप था वहीं समुद्र में ही रोक दिया तट के किनारे। And next morning all the 28 people who lived there on the island cheered them, that means they encouraged them and helped them to get onto the island. और अगली सुबह उस आइलैंड के जितने भी इनहेबिटेंट्स थे, टोटल 28 लोग वहाँ पे रहा करते थे, वो आए, उन्होंने उनको इनकरेज किया, चीयर किया और आइलैंड में उतरने में इनकी हेल्प की। With land under my feet again, my thoughts full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the direst stress. So the moment when the narrator set his feet on island, he was only thinking about these people, at first about Larry and Herbie, and he says that both of them were happy and they were always optimistic even during the worst situation they had faced together. सो नरेटर कहता है कि जब मैं दोबारा से अपने पाँव ज़मीन पर रख पाया इतने दिनों के बाद, जब मैं अपने पाँव दोबारा ज़मीन पर रख पाया उस वक्त मैं अपने मन में इन सब लोगों के बारे में सोच रहा था। एट फर्स्ट लैरी और हर्बी के बारे में, जो कि थ्रू आउट दी जर्नी ऑप्टिमिस्टिक थे और हमेशा चीयरफुल रहते थे। ऑल्दो बहुत सारी मुश्किलें उनके सामने आई, बहुत बुरी सिचुएशन का उनको सामना करना पड़ा, लेकिन ये दोनों हमेशा ऑप्टिमिस्टिक थे। तो नरेटर इनके बारे में सोच रहा था। एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स। He was also thinking about his wife Mary, who had taken the captain's place and was steering the wheel during all those difficult times. और नरेटर अपनी वाइफ के बारे में भी सोच रहा था और किस तरह से उसने पूरे इस मुश्किल भरे समय में स्टीयरिंग को संभाला था, ये सब बातें वो सोच रहा था। Most of all, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull. So he was also thinking about his daughter Suzanne, who was just 7 years old, although she had a head injury, but she did not come and disturb her parents during the time of rescue. And he says that the head injury took at least 6 operations to remove blood clot that was reappearing between her skin and skull. और नरेटर कहता है कि मैं उस वक्त उस 7 साल की लड़की के बारे में भी सोच रहा था जिसके सर पर चोट लगी हुई थी, लेकिन उसने उस टाइम में हमको डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा और जो वो चोट थी वो बहुत छोटी सी नहीं थी। उस चोट को सही करने में लगभग उनको 6 माइनर ऑपरेशन करवाने पड़े बिकॉज बार बार उसकी स्किन और स्कल के बीच में एक ब्लड क्लॉट बन जा रहा था और उसको ठीक करने के लिए लगभग 6 ऑपरेशंस उसके हुए। सो वो कहता है कि उस वक्त मैं अपनी उस 7 साल की बच्ची के बारे में भी सोच रहा था।
सो जिसने हमें इतना सपोर्ट किया, and of a 6-year-old boy who was not afraid to die. Then the narrator says that I was also thinking about that 6-year-old boy, that means about his son, who was not afraid to die. And he exhibited great courage, optimism during their efforts to escape from the worst situation in their journey. नरेटर कहता है कि मैं उस 6 साल के लड़के के बारे में भी सोच रहा था जिसको मरने से डर नहीं लगता था। दैट मीन्स वो अपने बेटे के बारे में, जोनाथन के बारे में सोच रहा था। और वो ये कहता है कि जोनाथन की उस करेज की वजह से, उस ऑप्टिमिज्म की वजह से उन्हें बहुत हेल्प मिली इस टफ सिचुएशन को हैंडल करने में। और जिस तरीके से जोनाथन ने कहा कि वो मरने से नहीं डरता है, ये बहुत बड़ी बात थी। तो हियर द चैप्टर एंड्स and it tells us that when there are disasters or tragedies in one's life, we should not get sad, but we should fight them and face them with a strong will power. The narrator and his party faced the worst times of their life, but they faced it boldly and came out successfully. So the lesson is clear: we must face the odds of life with courage and they won't harm us. सो इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि चाहे हमारी ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियां आएँ, किसी भी तरह की कठिनाई आए, अगर हम सब मिलकर के और करेज के साथ में उसका सामना करेंगे तो ऑब्वियसली हम उसे फेस कर पाएंगे और एट द एंड हमें सक्सेस ही मिलेगी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप you would like this story and the video as well. Stay happy, stay healthy and keep learning. Thank you.